Rajasthan, and wholeheartedly thankful to the team of physiotherapy at Suresh Gyan Vihar University, Dr. Ruchika Pal ma'am, Dr. Sonam Verma ma'am, for giving me this wonderful opportunity to come across with the young guys and with my favorite topic. So I'm really much thankful to you all. Without wasting much of the time, so today we are going to have some discussion, or we can say some learning on the physiotherapy and its importance in cases of insomnia. So this is something which is looks like a new, exactly not a new thing in the world. Since around 40-50 years, there are few physiotherapists who are working in the field of psychiatry, in the psychiatric rehabilitation. Ma'am, is the English okay, or should I go in a mixed language? So you can speak in English, but sir, let's explain them in a little bit of the easy language, sir. Okay, sure, sure. So as you can see, the insomnia is something related to the sleep or sleeping issues. And psychiatry rehab इंडिया में थोड़ा सा नया है, but world में in USA, in UK, there are few very senior physios who are working in this area since last 40-50 years, and they are doing a tremendous job. Effectiveness of physical activity is well acclaimed since around 1950s. ये बहुत अच्छे से प्रूव्ड है कि फिजिकल एक्टिविटी का साइकेट्रिक डिसऑर्डर में either it to be a mild disorder, it to be a severe disorder, it has a great important role. In the same series, the sleep disorders, जो सबसे commonest disorder है, almost 33% population worldwide is suffering somewhere about the sleep disorder, and this ratio has been increased last year because of the COVID-19. So because our lifestyle has changed and we had a lot of sleeping issues. So that causes the people less to sleep in the daytime. So today we will have a brief overview about the sleep. Actually sleep क्या होता है? इसकी definition क्या है? Physiological changes क्या है? How it affects our body. अगर नहीं सोएंगे तो हमें क्या नुकसान होने वाला है? Why should I sleep? I should be awake for day and night. मैं एग्जाम के टाइम पे भी तो रात भर जग ही लेता हूँ. So we'll have a look कि अगर आप कंटिन्यूसली प्रॉपर नहीं सो पा रहे हैं तो आपकी बॉडी में किस तरीके से इल इफेक्ट्स देगा. एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीप डिसऑर्डर का, जो कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीप डिसऑर्डर के द्वारा दिए गए, एंड विल हैव अ फ्यू justification of why a physiotherapist should treat a person with sleeping issues, and we'll have a short overview about the stimulation of brain, जिनको हम एडवांस न्यूरोफिजियोथेरेपी में न्यूरोमोड्यूलेशन के नाम से जानते हैं. न्यूरोमोड्यूलेशन मतलब ब्रेन के साथ में ब्रेन को मैनिपुलेट करना या क्रेनियल नर्व्स एंड ब्रेन को इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू को मॉडिफाई करना, उसकी एक्टिविटी को उसको एक्टिवेट करना है या उसको इनहिबिट करना. एंड इट हैज अ ग्रेट रोल इन all the advanced neuro rehab, and it is also used in the psychiatric rehab as well. And there is one recommendation, international एक recommendation है जो इस बात को acclaim करती है, and it has been given in 2018 only. Since 2015 there is a group जो international level पे psychiatric rehab पे work कर रहा है, that is to be known as IOPTMH, International Organization of Physical Therapy in Mental Illness. And similarly in 2018 there was a big research being done worldwide. एक बहुत बड़ी research हुई, उसमें देखा गया around I think thousands of participants were there and hundreds of articles has been reviewed, और उन्हें researchers ने देखा and they found that whenever there is a physiotherapist available as a team member for rehabilitating or improving a patient with a psychiatric illness, the patient has a great outcomes. So they recommended the physiotherapist has to be considered as a primary care practitioner in the psychiatric rehab as well. हम सबको पता है ऑर्थोपेडिक्स में, न्यूरोलॉजी में we do have a great role. Gynecology में, pediatrics में, cardiovascular physiotherapy is working so well. In the mental illness also, the physiotherapy is having great value, great importance. So that has been even recommended by international organization, जो कि WHO की governing body कह सकते हैं अपन, या अपनी जो international accrediting body है, World Confederation of Physical Therapy, उसी का एक सब ग्रुप है IOPTMH. उनके कुछ रिसर्चर्स ने मिलकर के और साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, देयर इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम,
इन्हें मिलकर के एक वर्क किया एंड दे हैव कंक्लूडेड यस इट हैज टू बी कंसीडर्ड एज अ प्राइमरी केयर प्रैक्टिशनर। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्लीप हाइजीन दैट इज in man most of the studies is found as a lack of knowledge even in the medical professionals. So medical undergraduate students में बहुत से रिसर्च ऐसी हुई है इसमें देखा है तो स्लीप हाइजीन एक बहुत बेसिक सी चीज है जो आपकी स्लीप को 50% स्लीपिंग इश्यूज को शायद वो मैनेज कर सकते हैं सिर्फ अगर आपको स्लीप हाइजीन की नॉलेज है। सो दैट टू विल सी कि आखिर स्लीप हाइजीन होती क्या है उसमें वो क्या करना चाहिए। सो बिफोर प्रोसीडिंग so this is something what you can see. Ma'am, can the student participate in a conversation or they would be muted? Okay, hope I am audible to everyone. So this you Yes, can see. sir. Yeah. Thank you. So this you can see someone is just playing on a treadmill, है ना? ऐसा ही लग रहा है कि खेल रहा है. What do you observe? Can anyone please tell? Sir, we are observing he is not in conscious state. Just, I think. Yeah. So this is actually the someone you can see. Someone is sleeping on the daytime because treadmill आदमी दिन में चलाता है. The instructor is with the patient and patient had suddenly slept on the treadmill. Treadmill चलाते चलाते उसको अचानक नींद आई और नींद आने के बाद में क्या हो सकता है? You can see the consequences. It can even lead to the very serious consequences. Patient may have a serious type of head trauma, है ना? Minor head injury से लेकर के patient का अगर serious head injury हुई तो patient may even go into the coma as well. So this is the a simplest example of showing the ill effects of sleeping deficit. कि अगर आपको proper नींद नहीं आ रही है या गलत टाइम पे नींद आ रही है, then you can have this type of consequences. So this is why the sleep or sleep health is a very crucial thing. So let us see what is the sleep. It is the natural periodic state of rest for mind and body. Normally आप जब भी काम करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप 24 hours continuously walk कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं या बैठे हैं. You are having some intervals. कभी आप बैठे होते हो, कभी आप खड़े होते हो, कभी आप सो रहे होते हो. So whenever you are in a different position, your body mechanics is changing. Along with the change of body mechanics, your body pressure areas are changing. Similarly, the muscle groups are getting relaxed partly. सपोज अगर आप दोनों पैर पे खड़े हैं तो दोनों पैर की लोअर एक्सट्रीमिटी मसल्स एंड ट्रंक मसल्स वर्क कर रही हैं आपकी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए. अगर आप बैठे हुए हैं तो आपकी लोअर लिम्ब मसल्स रिलैक्स हो गई. एंड इफ यू आर इन द स्लीपिंग पोजीशन और सुपाइन और एनी लाइंग पोजीशन, योर ऑल द मसल्स आर वर्किंग विद अ वेरी नेगोशिएबल फोर्सेस, है ना? ऑलमोस्ट मसल फोर्स इज नेग्लिजिबल. तो बॉडी को फिजिकली रिलैक्स मिल रहा है. लेकिन व्हाट अबाउट योर हार्ट, व्हाट अबाउट योर डायफ्राम एंड व्हाट अबाउट द क्रूशियल ऑर्गन ब्रेन जो कि आपकी पूरी बॉडी को रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है. सो दैट टू नीड सम शटडाउन, है ना? इफ यू आर यूजिंग मोबाइल फोन, तो मोबाइल है, लैपटॉप है, एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट नीड्स सम रेस्ट और सम रिचार्ज टू बी डन. दोबारा आपको उसको चार्ज करना पड़ता है. ऐसा नहीं होता है कि आपने मोबाइल खरीदा और पूरी जिंदगी मोबाइल चलता रहेगा विदाउट गेटिंग एनी चार्ज. आपको चार्ज भी नहीं करना है. इज इट पॉसिबल? No, sir. So this is something which our sleep does with your body. आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन को वापस से रिफ्रेश करने का, रिजुवनेट करने का, रिचार्ज करने का काम करती है. दैट इज अ स्लीप जो आपके माइंड को और बॉडी को रिलैक्स करती है. अब माइंड को तो समझ में आ गया, ठीक है, चलो सर, मतलब दिन में हम सो रहे नहीं है, जग रहे हैं तो दिमाग काम कर रहा है, हम सुन रहे हैं तब भी दिमाग काम कर रहा है, बोलेंगे तब भी करेगा, चलेंगे तब भी करेगा. सोने में तो दिमाग कैसे काम करेगा? सोने में दिमाग काम करता है. यू आर हैविंग ड्रीम्स, बढ़िया अच्छे सुनहरे सपने आते हैं, कभी भूत भी आता है. सो देयर इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन योर ब्रेन. कुछ ना कुछ दिमाग में चल रहा है. तो वो हम आगे देखेंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों चल रहा है, क्या नॉर्मल है, क्या अबनॉर्मल है और क्यों अबनॉर्मल. सो स्लीप इज नेसेसरी टू रिचार्ज योर ब्रेन, टू रिजुवनेट योर ब्रेन, टू मेक यू रिफ्रेश, ताकि अगले दिन आप पूरी एनर्जी के साथ काम कर सको. एंड यू मे हैव एक्सपीरियंस कि जब भी आप रात को अच्छा सोए होते हैं ना तो सुबह लगता है कि हाँ यार आज तो मजा आ गया, आज तो मैं बिल्कुल आई एम रेडी फॉर अ वॉक, आई एम रेडी फॉर अ वर्क, जस्ट गेट रेडी फॉर एनी एक्टिविटी. और जिस दिन आप रात को सो नहीं पाते या नहीं सोते, डिप्रेस लगता है कुछ, मतलब देयर इज समथिंग इनकम्प्लीट. चाहे आपको बहुत कुछ अनरिफ्रेशिंग सा नहीं लग रहा होगा, बट यू विल फील समथिंग लाइक आई एम नॉट
I'm not as active as I was on yesterday. So this is the sleep. So these are few physiological changes which happens during a sleep, and they will claim, they will prove it. Yes, during sleep, your body normally get relaxed. In the normal circumstances, you will get relaxed. So during sleeping time, your plasma volume gets decreased to around 10%. Your heart rate comes down to around 45 to 60 beat per minute. Now question arises, what is the normal heart rate? Except Sanghamitra. I think she's only speaking continuously now. Yes, Heart sir. rate. Anyone please? I think you are having a good day sleep. That's also awesome ना. क्लास के टाइम पे नींद वैसे भी अच्छी आती है. Okay, Sanghamitra, you can tell me. What is the Sir, normal heart? 72 beat per minutes. 72 beat per minute. So this is going down. You can see almost 45 beat per minute or 60 beats per minute. मतलब almost it is coming to the 30% or 50% of the normal heart rate. तो इतना हार्ट का वर्कअप कम हो जाएगा, हार्ट की रेट कम होगी, मतलब उसकी चलने की स्पीड कम हो गई, तो उसको थोड़ा ब्रेक मिल रहा है, रेस्ट मिल रहा है. ब्लड का प्रेशर डाउन हो जाएगा. सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर विल कम अप टू 90 टू 110 mmHg, जो नॉर्मली आपका 120 और 130 अपन कंसीडर करते हैं कि नॉर्मल है. सो इट इज कमिंग समवhat लोअर साइड ड्यूरिंग स्लीप ओनली, एंड इट इज नॉर्मल है ना, इट इज नॉट abnormal. So during the 4 hour of sleep till wakening, this remains low. और जब आपको बहुत बढ़िया सपने आ रहे होते हैं ना, मतलब whenever you are having a night terrors, डरावने सपने आ रहे हैं, then that is a time when your heart rate and blood pressure increases. इस टाइम पे आपका थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है because of your muscular activity and other chemical activity which is happening in the brain. तो जब भी आप डीप स्लीप में होते हैं तब आपके हार्ट एंड ब्लड प्रेशर कम होगा. जब भी आप सुपरफिशियल स्लीप में, लाइट स्लीप में, या जब आप ड्रीमिंग वाली फेज में है, देन योर हार्ट एंड ब्लड प्रेशर विल बी चेंजिंग. रेस्पिरेशन नॉर्मली आप जो सांस लेते हैं नॉर्मल एक पर्टिकुलर रिदम के साथ होता है, पर आपने कभी महसूस किया होगा, देखा होगा, मूवीज में देखा होगा कि जब आदमी डरावने सपने देख करके उठता है तो कैसे उठता है, जोर से भागते हुए. So that abnormal type of respiration is a kinestokes respiration, जो कि कुछ abnormal है. तो कभी जब आप डीप स्लीप में होते हो तो रेस्पिरेटरी थोड़ी कम होगी. जब आप एक्साइटिंग फेज में होगे, कुछ अच्छा सा दिख रहा है, कुछ डरावना सा दिख रहा है, that will increase. GIT, during sleeping your salivation decrease. कम हो रहा है, अच्छी बात है. If your salivation will increase, it will cause you trouble in sleeping. ठीक है, तो ज्यादा सलाइवेशन होगा तो आपको निगलना पड़ेगा, बार बार निगलना पड़ेगा, मसल वर्क बढ़ेगा, एंड इट विल गिव यू डिफिकल्टी falling asleep or maintaining sleep. सलाइवेशन कम हो जाता है. गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस मतलब इनवॉलेंट्री एक्शन जो है आपके जीआईटी सिस्टम का, जिससे कि आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग. इसीलिए अपन बोलते हैं खाना खा के सोते हैं तो सोने के बाद में खाना डाइजेस्ट हो जाता है. या आप दूसरे तरीके से लें तो खाना खाने के बाद में थोड़ी देर नींद आती है. जिसने अभी लंच किया होगा ना तो थोड़ी देर में आने वाली है. तो why this happens? Because this is a normal phenomenon. Whenever you take a meal, तो आपकी बॉडी का जो ब्लड का कंसंट्रेशन है that concentrated towards your GIT, क्योंकि आपके पेट में खाना चला गया, उसको पचाना पड़ेगा, मिक्सर चालू करना है. तो मिक्सर को चालू करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. यू नीड मोर ब्लड सर्कुलेशन towards your gastric system, and this is the reason why your blood circulation or the blood flow of the other area will get diminished. उस एरिया का कम हो जाता है, ब्रेन का भी कम हो जाता है, सिर्फ जीआईटी में ज्यादा होता है. इसलिए खाना खाने के बाद नींद आती है और अपन को सोने जैसा फील होता है. और जब अपन सोते हैं उसके बाद खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है. तो बहुत सारे सिंबल है. तो जिनको नींद अच्छी नहीं आती है, दे यूजुअली हैव कॉन्स्टिपेशन, या जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, दे यूजुअली हैविंग स्लीपिंग इश्यूज. एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो यूरिन फॉर्मेशन नॉर्मली स्लीपिंग टाइम पे कम होता है, जैसा कि अपने दिन में हम लगभग 5 से 7 बार यूरिनेशन के लिए जाते हैं, रात में 1 या 2 बार जाते हैं. अगर अपन नॉर्मल है तो, डायबिटीज नहीं है तो. स्वेटिंग बढ़ जाती है. स्वेटिंग क्यों बढ़ती है? क्योंकि आपको ड्रीमिंग lacrimation will decrease. Sir, PPT is not visible. Okay ma'am, let me check just a minute. Okay, sir.
Yeah. Sorry, there was, I think, laptop was disconnected. So I hope screen is now visible. Sir, it is not visible. If you want me to share, I will share the PPT. Okay, ma'am, please you share. Okay, sir. I think it's visible on camera. You share the screen. That would be better. Okay, sir, I will share. Please, please. Sorry again. Sir, explaining this slide. Just let me check. This is not showing to me. Ma'am, you can make it on the second slide of physiological changes during sleep. Okay. Physiological changes during sleep. Yeah, second slide of it. This one. Yeah. So whenever you are sleeping, sweating is increasing, fluctuation decreases. Should I continue, ma'am? Yes, sir. Yeah, please. Thank you. Thank you very much. During sleep, normally your muscle tone get developed, and this is the way how your muscles are getting more relaxed while you are sleeping. But, this is sometimes also referred as sleep paralysis, except your ocular muscles. क्योंकि ocular muscles भी resting phase में चली जाएंगी, then there will be no eyeball movement. So there is a little eyeball movement every time during sleep. कभी बहुत fast oscillation होते हैं, कभी बहुत slow oscillation होता है, but there is some oscillations. Reflexes. Babinski will be positive during deep sleep. So, what do you know something about Babinski? Babinski is a basically plantar reflex. जब भी हम पैर को स्क्रैच करते हैं कोई शार्प ऑब्जेक्ट से सोल ऑफ द फीट को, then normally it should come in a flexion. फ्लेक्शन यहाँ करके अगर एक्सटेंशन आ रहा है तो इसको हम बेबिंस्की पॉजिटिव बोलते हैं, और इसको हम एक तरीके से न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट का इंडिकेटिव मान के चलते हैं. तो ड्यूरिंग स्लीप, क्योंकि आपकी बॉडी रिलैक्स्ड है, दैट टाइम नॉर्मली पेशेंट विल शो द बेबिंस्की पॉजिटिव. तो जब आप स्लीपिंग टाइम पे बेबिंस्की चेक करेंगे तो बेबिंस्की पॉजिटिव फाइंडिंग आएगी अगर वो डीप स्लीप में है तो. एंड अदर टाइम पे ये डिमिनिश हो जाता है, इट मे नॉट बी प्रेजेंट, ब्रेन विल नॉट बी एक्टिव, एंड देयर वुड बी ए इरेगुलर इंटरवल ऑफ ड्रीम्स. मतलब समटाइम्स यू आर हैविंग ड्रीम्स, समटाइम्स यू आर नॉट हैविंग ड्रीम्स. नेक्स्ट प्लीज. नाउ in this slide you can see individual sleep requirement. On an average, an infant needs around 66% of their life, of their daytime, and the 24 hours में से 66% time उसको सोने के लिए चाहिए for being healthy, and an adult is needing 33% approximately. So ये एक normal average requirement है sleep की individual की. According to age, the requirement of sleep decreases. छोटे बच्चे ज्यादा सोते हैं 10 से 12 घंटे, जो शायद न्यूनेट हैं या इन्फेंट्स हैं. बच्चा जब बड़ा होता है तो शायद कम सोता है, 10 घंटे के आसपास. और जब अपन एडल्ट हो जाते हैं तो we do sleep around 6 to 8 hours. Normally, at the age of 60 or 70, the sleep requirement declines up to 5 hours only. And still, this is not a ideal thing, and this is not a strict guideline कि इतना hours का sleep होना चाहिए. It is variable according to the individual physiology. You should have a satisfied sleep. So, another contrary to this, we can see this around 33% to 50% of the adult population is having insomnia. They are having trouble with sleeping. Now you see this graph. There are basically 4 stages of the sleep. Stage 1, 2, 3 and 4. अब इसको अपन बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं, इसको डायग्राम को थोड़ी देर भूल जाते हैं. Whenever you started sleeping, कि आप जैसे क्लास में होते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में क्या होता है, थोड़ा सा सर पढ़ा रहे होते हैं, मैम पढ़ा होते हैं, तो अभी खाना खाया है, 10-15 मिनट तो हम अलर्ट रहेंगे, उसके बाद में 5-10 मिनट बाद में थोड़ा सा है ना सुस्ती आने लग जाती है, मतलब तो वो सुस्ती आना हो जाता है. तो दैट इज अ स्टेज 1 ऑफ स्लीप. स्लीप इनिशिएट हो गई ना, यू आर फीलिंग ड्राउजी.
है ना, ऐसा लग रहा है कि यार मुझे अब नींद आ रही है, फिर अपन सोचते हैं यार कैसे भी करके ये सर का लेक्चर हो जाए तो उसके बाद बाहर जाकर हम पानी पी के आएं। उसके 5-10 मिनट बाद में फिर क्या होता है कि सब्जेक्ट या तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है या बहुत बोरिंग हो गया, या सर अच्छे ही नहीं है, तो थोड़ी सी और नींद आने लग जाएगी, मतलब फिर उसके बाद ये होगा कि अब आंख खोलनी है, आंख से पकड़ के खोलनी पड़ रही है ना, यू आर अनेबल टू मेक योर आईज ओपन, आपको अक्सर करके रखना पड़ रहा है, या आप नजर चुराने की कोशिश कर रहे हो कि सर की नजर नहीं पड़ जाएगी। सो दिस इज द स्टेज टू स्लीप, कि आप धीरे धीरे और डीप स्लीप की तरफ एंटर कर रहे हैं। ग्रेजुअली यू गो इनटू द ऑल फोर फेजेस ऑफ स्लीप। हर 90 मिनट के अंदर आपकी ये फेजेस चेंज होती रहती है, स्टेज 1 से स्टेज 4। जब आप डीपेस्ट पार्ट ऑफ स्लीप में होते हो, उसके बाद में सर बगल में आके तालीम हो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा, मतलब सर ने पढ़ा के चले गए और आप सोते रह गए। सो दैट टू समटाइम्स हैपन, होता है हमारे साथ कई बार कि हम, है ना, सर पढ़ा रहे होते हैं, अपनी मस्ती में मस्त हैं हम, और थोड़ी देर बाद इतना सो गए कि सर बगल में खड़े हैं और 2 मिनट से कुछ भी नहीं बोल रहे और हम यस सर किए जा रहे हैं। सो इट हैपेंस बिकॉज वी हैड एंटर्ड इनटू द स्लीप। सो दिस इज द स्टेज 4 स्लीप। अब इसमें क्या दिखाया हुआ है डायग्राम में, बेसिकली इसमें सिंपली ये दिखाया हुआ है कि जब भी आप इन चारों फेजेस, जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट की फेजेस हैं, जब आपकी आई बॉल कम मूव करे, जब आपको सपने नहीं आ रहे हैं, तो उस टाइम पे आप जब गहरी नींद में जाओगे, तो उसके बाद जो आरईएम स्लीप आएगी वो थोड़ी कम टाइम के लिए आएगी, एंड ग्रेजुअली इट विल इंक्रीज द ड्यूरेशन। जैसे जैसे स्लीपिंग का टाइम बढ़ेगा, मतलब शुरू के 1 से 2 घंटे के बीच में आप देखो आरईएम स्लीप का टाइम कम है, मतलब सपना आएगा भी तो बहुत छोटा सा आएगा, 1 आध 2 मिनट का। अर्ली मॉर्निंग में देखो आप, जब 6 से 7 घंटे का समय है, आई गेस यू कैन सी द, या यस, सो अर्ली मॉर्निंग जब आप देखेंगे तो यू कैन सी दिस आरईएम स्लीप, जो आपको 6 से 7 नीचे की लाइन में आपको आवर्स ऑफ स्लीप दिख रहे हैं, 6 to 7 आवर्स के बीच में देखिए आरईएम स्लीप का टाइम बढ़ गया है, मतलब आपको सुबह के सपने ज्यादा लंबे आते हैं, और शायद यही वजह कि सुबह के सपने हमें याद रह जाते हैं, और शायद इसीलिए कहावत बन गई कि सुबह के सपने सच हो जाते हैं, मे बी। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव मल्टीपल ड्रीम्स इन नाइट, है ना, लोगों को लगता है कि मुझे तो रात में बहुत सारे सपने आते हैं, एवरीवन हैज, किसी को कुछ मिनट का आता है, कुछ सेकंड का आता है, एंड व्हाई दीज आर नेसेसरी, बिकॉज टू कंसोलिडेट योर मेमोरी, आपकी मेमोरी को, आपने आज दिन भर जो क्लास में पढ़ा है, रात को अगर उसका सपना आ गया, मतलब सर आ गए, तो सर का नाम याद रहेगा, टॉपिक याद रहे ना रहे, और टॉपिक आ गया तो बहुत, फिर क्या कहना, है ना, फिर शायद अगले दिन आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो दिस इज समवॉट नीडेड, पर उसका भी एक अमाउंट है, मतलब यू कैन सी फ्यू मिनट्स आर नेसेसरी। ज्यादातर टाइम आप एनआरईएम स्लीप में हो, ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ब्लू लाइन ज्यादा टाइम कैरी कर रही है, जबकि जो येलोइश या ऑरेंज लाइन आप देखें, सो दैट इज टेकिंग अ लेस टाइम, क्योंकि आपको सपने कम टाइम के लिए आने चाहिए, ज्यादा सपने आएंगे तो रात भर थक जाओगे, सुबह प्रॉपर नहीं उठ पाओगे। नेक्स्ट प्लीज। सो जैसा कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, देयर आर बेसिकली 2 मेन स्टेजेस ऑफ द स्लीप, वन इज आरईएम स्लीप, अनदर वन इज नॉन आरईएम स्लीप। आरईएम स्लीप मतलब रैपिड आई मूवमेंट, है ना, माइंड द वर्ड रैपिड आई मूवमेंट, जब आंखों का मूवमेंट तेज तेज होगा, आई बॉल बहुत फास्ट मूव करेगी। और इसको अगर आपको देखना है तो आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है और अगर वो सो रहा हो, छोटा मतलब बहुत बेस्ट होगा अगर वो इन्फेंट हो, साल भर का या उससे छोटा, तो क्योंकि वो दिन में भी सो रहा होगा तो आपके लिए इजी होगा, आप दिन में देख लोगे, वरना रात को जगना पड़ेगा। So whenever a child is sleeping, you just gently open the lid. उसके eyelid को थोड़ा सा ऊपर करो, you can see the movement of eyeball. बच्चों को अधिकतर सपने ज्यादा आते हैं, है ना, और इसलिए आपने कई बार देखा होगा, या तो वो सपनों में हंस रहे होते हैं या सपने में रो रहे होते हैं। दिन में ज्यादा पिटाई हुई है, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो रात को सपने में रो भी सकता है, और अगर सोते सोते उसको कुछ इनाम मिला या कुछ पसंदीदा काम हुआ तो मे भी रात को सपने में हंस भी सकता है। So that depends. So where you can see REM and NREM phases. रैपिड आई बॉल मूवमेंट मतलब जब आई बॉल फास्ट मूव कर रही है, इसलिए उस फेज का नाम रैपिड आई बॉल मूवमेंट या रैपिड आई मूवमेंट फेज बोलते हैं। ये वो फेज है जहाँ पे सपने आते हैं। दूसरी वाली है एनआरईएम स्लीप, जिसमें सपने नहीं आते हैं, आई बॉल का मूवमेंट भी रैपिड नहीं होता है, बहुत स्लो होता है, जिसमें अपन ने 4 स्टेजेस देखी, स्टेज 1 टू स्टेज 4। नीचे नीचे जो डायग्राम है बेसिकली ब्रेन की वेव्स को दिखा रहा है, इसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसमें सिर्फ इतना सा जान लें कि जितना स्लो वेव होगा उतना ब्रेन रिलैक्स होगा। तो हमको सोने के टाइम पे ब्रेन की एक्टिविटी कम से कम चाहिए, स्लो ब्रेन वेव्स होनी चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। सो व्हाट इज हैपनिंग इन द स्टेज 1? यू कैन सी ड्यूरिंग द स्टेज 1 ऑफ एनआरईएम यू आर हैविंग अ डिक्रीज अल्फा वेव, ठीक है, डेल्टा कम हो जाती है, अल्फा बीटा डेल्टा जो वेव्स हैं, थीटा वेव्स, इन सब की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है। सो कंपैरेटिवली थीटा वेव सबसे स्लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली, जो अपने पढ़ा है ना करंट में फ्रीक्वेंसी पढ़ते हैं 0 to 1000 हर्ट्ज से लो फ्रीक्वेंसी करंट, वैसे इन वेव्स की, ब्रेन की वेव्स हैं जो अपन ईईजी के थ्रू जांच करते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी एक तरीका है जिससे ब्रेन की एक्टिविटीज को जांच टेस्ट किया जाता है।
तो अल्फा वेव की एक्टिविटी कम होती है फर्स्ट स्टेज में, मतलब आप थोड़े थोड़े मदहोश हो पर उतनी नींद नहीं आ रही है। स्टेज 2 में उसमें आपको अल्फा वेव आई नहीं रही है, अब सिर्फ डेल्टा वेव आ रही है, ठीक है ना। इसकी फ्रीक्वेंसी यू कैन सी 14 पर सेकंड है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। डिसएंगेज विद सराउंडिंग, अब आपको आसपास का ज्यादा पता नहीं चल रहा है, पड़ोसी पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा आपको पता नहीं है, आपको तो नींद आ रही है, ठीक है ना। बॉडी टेम्परेचर विल बी डिक्रीज। नेक्स्ट प्लीज। थर्ड स्टेज में अगेन यू कैन सी द फ्रीक्वेंसी, पहले फ्रीक्वेंसी 14 पर सेकंड थी, स्टेज 3 में आते थे फ्रीक्वेंसी देखो 1 to 2 पर सेकंड हो गई, तो फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, मतलब ब्रेन थोड़ा रिलैक्स होता चला जा रहा है, अब आप और गहरी नींद की तरफ जा रहे हैं। कभी बहुत सी मूवीज में साइकोथेरेपी और क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड चीजें दिखाई जाती है, तो उसमें हिप्नोसिस के प्रोसीजर में कई बार ये चीज दिखाई जाती है। हाँ आप देखो आपका नाम ये है, ऐसे हिप्नोटाइज करते हैं ना, इसको बोलते हैं अब आप सो रहे हो। सो पेशेंट यूजुअली ग्रेजुअली एंटर्स इनटू द डिफरेंट फेजेस ऑफ द स्लीप, तो वो हिप्नोटाइज करके उसकी ब्रेन की एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो ब्रेन एक्टिविटी कम होगी, पेशेंट सो जाएगा एंड देन वी विल गेट आउट। वो हिप्नोसिस इज अ डिफरेंट साइंस, बट उसमें फिर उसको पुरानी मेमोरीज को याद दिलवाता है। तो वैसे ही यहाँ पे पेशेंट धीरे धीरे गहरी नींद में जा रहा है और इस तरीके से आपकी ब्रेन की वेव की एक्टिविटी कम होती चली जा रही है। स्टेज 4 इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ स्लीप, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, मतलब आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए एक्चुअली डीप स्लीप जरूरी है। इट्स प्रोमिनेंट विद द डेल्टा वेव्स एंड थीटा वेव्स, ठीक है। स्टेज 3+4 is known as deepest and it is the more restorative phase of sleep. Non-REM जो पार्ट है उसमें सबसे रिस्टोरेटिव, जो आपको रिस्टोर कर देता है, रिचार्ज कर देता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये स्टेज 3 और स्टेज 4 है। तो कई बार अगर आप गहरी नींद में नहीं जा रहे हो, मतलब आपको नींद तो आती है, 10 घंटे सोते हो आप, लेकिन सुबह उठते हो ना तो थके हुए उठते हो, तो दिस मे बी द रीजन कि आप स्टेज 3 और स्टेज 4 को अचीव नहीं कर पा रहे और इसीलिए आप सुबह थके हुए उठे। अगर आप स्टेज 3 और स्टेज 4 को अचीव कर पा रहे हो तो आप 5 घंटे सोने के बाद भी फ्रेश उठो। Getting it? So this is the crucial thing. So during this stage सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए आपकी फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ हार्मोन, सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज इंक्रीजिंग। इसीलिए बोलते हैं कई बार, अगर आपने सुना हो शायद, whenever the child is sleeping growth is increasing, वो ज्यादा ग्रो कर रहा है ना, उसकी लंबाई बढ़ती है, कार्टिलेजिनस एक्टिविटी बढ़ती है, प्रोटीन की एक्टिविटी बढ़ती है, ये सब होता है स्लीप में नेचुरली, और ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ता है। तो इसीलिए बच्चे का सोना जरूरी होता है। हम कहते हैं बच्चा है तो छोटा बच्चा है, इसको 12-15 घंटे सोना ही चाहिए, वो इसलिए सोना चाहिए कि अगर वो कम सोएगा तो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन भी कम होगा, तो उसकी शायद ग्रोथ कम होगी, मे बी ए शॉर्ट स्टेज है, कंट्रीब्यूट कर सकता है, मतलब डायरेक्टली फैक्टर नहीं है बट इट इज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। टिश्यू रिपेयर अच्छी होती है, इसीलिए अगर आप अच्छा सोते हैं तो सुबह कम दर्द के साथ और ज्यादा अच्छा उठते हैं, घाव जल्दी भर जाते हैं, यू विल फील मच बेटर। नेक्स्ट प्लीज। REM स्लीप। REM स्लीप में देखिए फर्स्ट 90 मिनट आफ्टर फॉलिंग asleep एंड इट रिकर्स एवरी 90 मिनट, हर 90 मिनट के बाद आप नॉन REM स्लीप में जाते हो। तो 60 से 90 मिनट तक हर 90 मिनट के बाद आप REM स्लीप में जाते हो, हर 60 से 90 मिनट के लिए आप नॉन REM फेज में रहोगे। तो जब आपने सोना शुरू किया तो आप स्टेज 1 से स्टेज 4 में गए, स्टेज 4 के बाद में फिर सपने आएंगे जो REM स्लीप कहलाएगी एंड इट विल परसिस्ट फॉर सम टाइम। ये टोटल स्लीप का सिर्फ 30% होता है, 20 से 30%, 70 से 80% आप नॉन REM फेज में रहते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू ब्रेन एंड बॉडी, सपोर्ट्स योर डे टाइम परफॉर्मेंसेस, ड्रीमिंग विद एक्टिव ब्रेन, आपका ब्रेन एक्टिव है इस टाइम पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एंड योर आई बॉल आर मूविंग कंपैरेटिवली फास्टर पेस, जो नॉन REM की फेज में था उससे थोड़ा तेज चल रहा है। नेक्स्ट प्लीज। नाउ द न्यूरोफिजियोलॉजी ऑफ स्लीप। In the neurophysiology of sleep, sleep and circadian rhythms of sleep will depend on the complex neural mechanism which are not entirely known. So basically, circadian rhythm मतलब टाइम पे, मतलब आपको नॉर्मली अगर आप देखो तो अमूमन ऑन एन एवरेज आपको रात को नींद आती है, दिन में नहीं आती है। तो ऐसा क्या है कि रात को नींद आ रही है, या आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे भूख लगती है, सुबह लंच का टाइम हुआ नहीं कि भूख लगना चालू हो जाती है, तो वो एक सर्काडियन रिदम है कि बॉडी की एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। तो वो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो आपके मिड ब्रेन में या आपके ब्रेन स्टेम में लोकेटेड होती है, जो उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है, जो कि स्लीप भी उसी का एक पार्ट है ना। उस बायोलॉजिकल क्लॉक में आप सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी अगर नींद खुलती है, वो अलग बात है कि आप आलस करके दोबारा सो जाते हो कि आज संडे है मुझे और सोना है। एक पर्टिकुलर टाइम पे यू नीड टू गो फॉर अ मोशन, है ना, ऑन एंड ऑफ कि 10 साढ़े 10 यू शुड गो फॉर मोशन, या 8 साढ़े 8, तो वो फिक्स टाइम है। एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको भूख लगती है, सुबह नाश्ते के टाइम पे, दिन में लंच के टाइम पे, अकॉर्डिंग टू योर हैबिट।
तो वो सर्काडियन रिदम है। वैसे एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको नींद इनिशिएट होती है, उस टाइम पे अगर आप 1-2 घंटे नहीं सोते हो तो फिर आप रात भर जाग सकते हो। ऐसा आपने कई बार एक्सपीरियंस भी किया होगा। जब एग्जाम टाइम होते हैं तो शायद 10 से 12 मुझे बहुत दिक्कत होती है, मैं उस टाइम गाने सुन के अपने को कंट्रोल करता हूँ, और 12 बजे बाद एक बार नींद खुल गई ना तो फिर मैं रात भर पढ़ाई कर लेता हूँ। सो दिस इज समथिंग इज अ सर्काडियन रिदम, जो आपकी नॉर्मल रिदम है जिसको आपको ब्रेक करना है, वो आपकी मजबूरी है 1 या 2 दिन। पर अगर आप रोज ऐसा करते हैं तो दैट विल डिस्टर्ब योर क्लॉक, आपकी क्लॉक डिस्टर्ब हो जाएगी और फिर नींद आना बंद हो जाएगी। अच्छा, अब अपन न्यूरोफिजियोलॉजी की बात करें तो स्लीप, क्योंकि ब्रेन इज इलेक्ट्रोकेमिकल ऑर्गन, तो वहां पे अधिकतर काम या तो करंट से होता है, मतलब इम्पल्सेस से होता है, या फिर केमिकल से होता है, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर से होता है। तो बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनके इसमें बहुत अच्छा रोल है, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर, सबसे फेमस जो फिजियोथेरेपी बहुत अच्छे से जानता है, एसिटाइलकोलिन, जो कि आपके सारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम करता है, न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी को प्रमोट करता है। उसके बाद में नॉरएपिनेफ्रिन है, सेरोटोनिन है, डोपामिन है, हिस्टामिन है, ऑरेक्सिन है। So these are all the neurotransmitters which helps maintaining the sleep. different brain areas हैं जो आपकी sleep को maintain करते हैं। Next please. ठीक है, इनके different फंक्शन है, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा। All the things you will get in your Semmelinghem physiology आपने सबने पढ़ी होगी hopefully, तो उसमें you can get even in जो अभी अपडेटेड वर्जन है Semmelinghem का, ऑनलाइन अवेलेबल है PDF ड्राइव पे, you can get it and you can see they have explained the physiology of sleep in a very well fashion, बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है पढ़िया चैप्टर में। सो इस डायग्राम में आपको डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स और उनके फंक्शन दिखाए हुए हैं, उनके न्यूक्लियस दिखाए हुए हैं कि वो न्यूक्लियस कौन से न्यूक्लियस से सिक्रीट हो रहा है। इसमें 2-4 जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ आपको। नेक्स्ट प्लीज। ना बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर का जो फंक्शन है वो ब्रेन एरिया पे डिपेंडेंट है। मतलब इट वुड नॉट बी लाइक कि जैसे डोपामिन है, या एक बहुत कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, जो आपकी स्लीप को इनिशिएट भी करवाता है और आपकी स्लीप को डिस्टर्ब भी करवाता है। मतलब इट विल मेक यू फील अवेक, इट विल मेक यू फील अस्लीप, दोनों काम करवाता है गाबा। तो वो डिपेंड करता है कि कौन से एरिया से वो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है। तो वैसे ये कुछ कॉमनेस्ट न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो आपको बहुत काम आएंगे, जो आपको ये भी बताएंगे कि हाँ फिजिकल एक्टिविटी या फिजियोथेरेपी कैसे हेल्प कर रही है। सबसे पहला है डोपामिन, जिसको अपन हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस बोलते हैं। कुछ दिन पहले इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस निकला है, सो इट वाज डेडिकेटेड टू मेक द पर्सन फील हैप्पी, है ना, लोगों को अवेयरनेस के लिए कि आपको खुश रहना चाहिए, शुड हैव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। तो डोपामिन उसमें बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो आपको तनाव मुक्त तो बनाता ही है, स्ट्रेस फ्री तो बनाता ही है, हैप्पीनेस तो देता ही है। सिमिलरली इट आल्सो गिव्स यू अ गुड नाइट स्लीप, तो रात को अच्छी नींद आएगी, उसके लिए डोपामिन जरूरी है। ठीक है, सो इट मेक्स यू हैप्पीनेस, इट मेक्स यू अवेयर, इट डिक्रीजेस द मेलेटोनिन। तो अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे डोपामिन सिक्रेट हो रहा है तब तो ठीक है, अगर आपको मिडनाइट में डोपामिन का सिक्रेशन हो रहा है तो ये आपकी नींद को अफेक्ट करेगा। जैसे कि अगर आपको कोई सपना, बहुत ज्यादा सपना आ रहा है तो कई बार अपन सपने से अचानक जाग जाते हैं, तो अ लॉट ऑफ डोपामिन विल मेक यू अवेक, वो जगा देगा आपको। अगर वो एक लिटिल अमाउंट में सिक्रेट हो रहा है और पर्टिकुलर टाइम, मतलब स्लीप इनिशिएशन से, सपोज आपको 10 बजे रोज सोने की आदत है, 8-9 बजे करीब तक डोपामिन है, तो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि डोपामिन जब भी सिक्रेट होगा उसके बाद में उसमें फिजियोलॉजिकल शटडाउन आता है, जैसे ही मेलेटोनिन सिक्रेट होता है। आप देख सकते हैं मेलेटोनिन लिखा हुआ है इसमें आगे ऑप्शन में। सो डिक्रीज मेलेटोनिन एक ऐसा हार्मोन या ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको सुलाता है, जिसकी वजह से आपको नींद आना शुरू होती है, और ये बेसिकली आपकी पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। पीनियल ग्लैंड इज समवॉट लोकेटेड ऑन दिस एरिया, आपका जो मिड पॉइंट है, जो नोनेशियन पॉइंट जो है तो बैक में अवेलेबल होता है ब्रेन में, पीनियल ग्लैंड, वहां से मेलेटोनिन सिक्रीट होता है, आपको सुलाना शुरू करता है। सेरोटोनिन तनाव को कम करता है, इसीलिए फार्माकोलॉजी सबने पढ़ी होगी ना, यू ऑल आर फ्रॉम फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, तो सेकंड ईयर स्पेशली यू हैव अ ग्रुप ऑफ SSRI, you anyone know the full form? SSRI नाम सुना है? SSRI कैटेगरी है। Okay, so this is known as serotonin specific reuptake inhibitor। नाम भी सुना होगा, शायद फुल फॉर्म भी याद होगी, पर इसको कभी हमने उस तरीके से सोचा नहीं। अब आज सोचिएगा जरा, दोबारा से देखते नाम, सेरोटोनिन स्पेसिफिक
रीअपटेक इनहिबिटर, रीअपटेक का मतलब होता है, बहुत सिंप्लीफाइड वर्ड में बोलूं तो डाइजेस्ट हो जाना। डाइजेस्ट होने का मतलब चीज खत्म हो जाएगी, फ्यूल एंड हो जाएगा। तो सेरोटोनिन का काम क्या है, टू मेक यू स्ट्रेस फ्री। सेरोटोनिन होगा तो एंजाइटी नहीं होगी। तो आप मेडिसिन क्यों देते हो, कि सेरोटोनिन रहे, उसका रीअपटेक नहीं हो। अगर वो रीअपटेक हो जाएगा, मेटाबोलाइट हो जाएगा, तो बचेगा नहीं, फिर आपको एंजाइटी होगी। इसलिए एंटी एंजाइटी कैटेगरी में बहुत कॉमन ड्रग है SSRI, जो आपको दी जाती है कई बार, मतलब इट हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड बाय अ साइकियाट्रिस्ट। सो इट रिड्यूसेस योर REM स्लीप, प्रोड्यूसेस मेलेटोनिन। तो आपकी जो REM स्लीप होती है उसको रिड्यूस करता है, और मेलेटोनिन का सिक्रेशन बढ़ाएगा, तो आपकी नींद का इनिशिएशन, इसलिए कहता है ना कि डिप्रेशन वाली दवाइयों से नींद आती है। सो दिस इज SSRI, जो एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेशन या एंटी एंजाइटी के नाम से जानी जाती है। नॉरएड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन क्या करता है, ये भी आपके मेलेटोनिन का सिक्रेशन बढ़ाएगा, तो अल्टीमेटली नींद को शुरू करवाएगा, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। एसिटाइलकोलिन प्रमोट्स REM स्लीप, ठीक है। तो अभी एसिटाइलकोलिन ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपकी REM स्लीप को बढ़ाएगा। तो जब भी आप REM स्लीप में होते हो, एसिटाइलकोलिन ज्यादा सिक्रीट हो रहा होता है। अगर ये और ज्यादा सिक्रीट होगा तो REM का टाइम बढ़ जाएगा, REM का टाइम बढ़ जाएगा तो आप रात को सोते टाइम पड़ोसी को लात मार दोगे, उसको नीचे भी गिरा सकते हो सकता है उठ के आप बाहर घूमने चले जाओ नींद में, जिसको बहुत से लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, बट दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ एसिटाइलकोलिन। वो आपकी REM की टाइम को बढ़ा देगा, आपको सपने ज्यादा आएंगे। So you don't need more acetylcholine, you don't need more dopamine. Dopamine is needed, but before the sleep, not during the sleep. ठीक है? So this is the main neurotransmitter which are needed to initiate the sleep. Next, please. Next. Next one. Yeah, thank you. So this is already we have discussed कि कैसे अपन लाइट स्लीप से डीप स्लीप में एंटर होते हैं, और डीप स्लीप के बाद में हम REM में चले जाते हैं, और ये साइकिल है, इट इज ए विशियस साइकिल, घूमता रहेगा, हर 90 मिनट में बार बार ऐसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वालिटी। स्लीप क्वालिटी में ज्यादा जरूरी है या स्लीप क्वांटिटी ज्यादा जरूरी है, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द क्वालिटी। यू शुड हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप, क्वांटिटी डजंट मैटर। मतलब आप 10 घंटे सोने के बाद भी अगर सुबह थके हुए उठते हो तो इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, आप रात भर सोए हो पर कुछ नहीं हुआ। इससे बेटर है अगर आप 6 घंटे सो करके फ्रेश उठ सकते हो। ठीक है, तो जो हम कई बार मिसअंडरस्टूड करते हैं कि मुझे तो स्लीपिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मैं तो 8-9 घंटे बढ़िया सोता हूँ, पर आप क्या सुबह अच्छे उठते हो, वो मायने रखता है ना, सोना मायने रखता है। एंड इट इज अगेन अफेक्टिंग योर डायग्नोसिस। तो अगर हाई क्वालिटी स्लीप है, दैट इज नॉर्मल स्लीप। इफ इट इज अ लो क्वालिटी स्लीप, मींस समथिंग इज व्हिच इज नॉट नॉर्मल। सो क्वालिटी कब मेंटेन होगी, जब प्रॉपर साइकिल्स होंगे, आप सुबह उठने के बाद रिफ्रेश होंगे। मतलब आपकी स्लीप की क्वालिटी इससे इंपॉर्टेंट, इससे डिनोट नहीं होती कि आप कितनी बजे सोए हो और कितनी बजे उठे हो, या कितनी देर के लिए सोए हो, या रात में कितनी बार उठे हो। नहीं, वो इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है कि क्या आप सुबह फ्रेश उठे हो या नहीं। अगर आप सुबह फ्रेश नहीं उठे हो, आपको सुबह उठने के बाद थकाव महसूस हो रहा है, मींस स्लीप क्वालिटी इज पुअर। सो दिस इज समथिंग व्हिच हैज टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। कहीं पे किसी को कुछ डाउट लगे तो यू कैन आस्क। नेक्स्ट प्लीज। नाउ देयर आर फ्यू लिस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन जो हमको ये बताएंगे कि व्हाई द स्लीप डिसऑर्डर्स हैज टू बी कंसीडर्ड एंड टू बी कंसीडर्ड एज अ प्राइमरी हेल्थ कंसर्न, और ये अदर बॉडी के सिस्टम्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है। अगर किसी को स्लीपिंग प्रॉब्लम है, और ये प्रूव्ड है रिसर्च में कि ये बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप रखता है, कि अगर आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम है तो यू वुड हैव अ साइकेट्रिक इशू। आज नहीं तो कल आपको एंजाइटी और डिप्रेशन होगा, या आपको डिप्रेशन है तो डिप्रेशन के 75% लोगों को स्लीपिंग प्रॉब्लम होती है। तो स्लीपिंग डेप्रिवेशन, स्लीप की कमी होने से यू कैन हैव हाइपरटेंशन। आजकल यंगस्टर्स में ब्लड प्रेशर की बीमारी बहुत हो रही है, है ना। बहुत से लोग मिल जाएंगे 30 साल 35 साल की उम्र में कि यार मुझे बीपी की शिकायत है, आई एम टेकिंग मेडिसिन। क्यों हो रहा है? शायद ये वजह हो सकती है। कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस, ओबेसिटी, है ना, और बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है। मतलब आपको ओबेसिटी है तो आपको स्लीप नहीं आने देगा, स्नोरिंग होगी, खर्राटे आएंगे। डिप्रेशन, तो ऑल द थिंग्स आर बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप, और स्लीप की वजह से भी ये सब हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ढंग से नहीं सोते हो ना, तो आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस जो है ना वो बढ़ जाती है। इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या है कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया।
Am I correct? Whenever the level of serum blood glucose increases, it is known as hypoglycemia. Is it correct? Sir, hyperglycemia, not hypoglycemia. चलो बढ़िया, कुछ लोग तो जाग रहे हैं. So, जब भी शुगर लेवल बढ़ जाता है ब्लड में तो उसको डायबिटीज बोलते हैं. और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नींद नहीं आने की वजह से इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ गई और आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ रहा है. डिमेंशिया कोज हो सकता है. डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी, जिसको अपन आम भाषा में सठिया जाना बोल देते हैं ना. दैट इज समटाइम्स आल्सो नोन एज अल्जीमर्स, है ना, बुढ़ापा में जो होता है. तो अगर जवानी में भी सठिया रहे हो आप तो कुछ ना कुछ तो बात है ना. स्लीप कैन बी ए कोज, है ना, ये भी एक फैक्टर हो सकता है. इट इज नॉट अ डिजीज, इट इज मेनली अ सिम्पटम. कॉग्निटिव फंक्शन को कम करेगा. मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, एमवीए, है ना, जैसे आपने देखा ट्रेडमिल पे, है ना, ऐसे दिन में गाड़ी चलाते टाइम नींद आ जाएगी तो क्या होगा? यू कैन हैव अ सीरियस हेड इंजरी, एनी सीरियस इंजरी एक्चुअली, है ना. तो कुछ भी सीरियस इंजरी हो सकती है. और बहुत आश्चर्य की बात होगी आपको जान करके कि जो ट्रक एक्सीडेंट बहुत कॉमन होते हैं. आई होप सो आप शायद इस चीज से अवेयर होंगे कि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में सबसे कॉमनेस्ट होते हैं ट्रक एक्सीडेंट्स, जो कि रोडवेज हाईवेज पे होते हैं. और उनके पीछे अधिकतर बार वजह स्लीप पाई गई है. मतलब शराब के नशे में तो होता ही है, पर कई बार ड्राइवर को नींद आ जाना सबसे बड़ी वजह होती है वो एक्सीडेंट होने की. तो वो नींद आ रही है, मतलब स्लीप डेप्रिवेशन इज कॉजिंग द सीरियस इशू. ड्राइवर की जान चली जाती है, 2-4 जने और भी एक्सपायर हो जाते हैं, एंड इट हैज अ सीरियस कंसर्न्स. सो दिस इज व्हाई द स्लीपिंग इज हैज टू बी कंसीडर्ड. कि आप कहीं जा रहे हो, आपको कहीं ट्रिप पे घूमने जाना है और रास्ते में नींद आ गई तो ट्रिप कैंसिल हो जाती है. डिक्रीजेस कॉग्निटिव फंक्शनिंग, इट इंक्रीजेस योर लर्निंग कैपेबिलिटी एंड मेमोरी. तो अगर आपको लगता है कि आपको कम समझ में आता है, आप कम समझदार हो, तो क्या आप रात में अच्छा सोते हो? ये भी पूछ के देखो. अगर आप अच्छा सोते हो तो अच्छी बात है, नहीं सोते हो तो शायद ये भी वजह हो सकती है. अगर आपको नींद नहीं आएगी तो यू विल हैव मोर एंजाइटी, यू विल हैव अटेंशन डेफिसिट. क्लास में ना ध्यान नहीं रहता, वो तो कोई बात नहीं, देयर कैन बी अदर रीजंस. क्योंकि अच्छे बच्चों का क्लास में वैसे भी ध्यान नहीं रहता ना, गाय घास चरने चली जाती है. सो these are the few basic effects of the sleep deprivation. Next please ma'am. It also improves your immune functions. तो अगर आप अच्छे सो रहे हो तो आपकी बॉडी में साइटोकाइंस रिलीज होते हैं. साइटोकाइंस बेसिकली क्या चीज है? साइटोकाइंस इम्यूनो प्रोटेक्टिव एजेंट्स हैं, जैसे कि डब्ल्यूबीसीज होती है उस तरीके से. तो इसीलिए कोरोना टाइम पे नींद पे बहुत, मतलब आपने देखा होगा कई बार, इट हैज बीन एम्फसाइज्ड, यू शुड हैव अ गुड स्लीप, यू शुड हैव अ गुड स्लीप, यू शुड वर्क ऑन योर स्लीप. क्यों? क्योंकि अगर आपकी नींद अच्छी है तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी. साइटोकाइंस की वजह से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ेगा, प्रोलेक्टिन का सिक्रेशन बढ़ेगा, मेलेटोनिन बढ़ेगा, लेप्टिन बढ़ेगा. लेप्टिन क्या है? किसी ने नाम सुना है लेप्टिन हार्मोन का? एनीवन प्लीज? LEPTIN, लेप्टिन. इट्स अ हार्मोन. डू एनीवन नोस दिस? लेप्टिन एक्चुअली इज अ हार्मोन व्हिच वर्क्स इन लाइपोलाइसिस. लिपिड को डाइजेस्ट करने का काम करता है बेसिकली. तो लेप्टिन का सिक्रेशन which works to stop the lipolysis. ठीक है. तो whenever there is a leptin, जब भी लेप्टिन ज्यादा होगा बॉडी में तो लिपिड्स का डिपोजिशन बढ़ जाएगा. तो अगर आप कम सो रहे हो तो आपके मोटे होने की संभावना बढ़ रही है. दिस इज द रीजन जो अपन ने पहले देखा था. साइटोकाइंस बढ़ रही है. डाउन रेगुलेशन ऑफ योर नेचुरल स्ट्रेस सिस्टम. जो आपका नॉर्मल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस है वो थोड़ा सा कम काम करता है, तो आपको तनाव ज्यादा रहता है, टेंशन ज्यादा होती है, एंड यू विल हैव improper activity in the daytime. Next please ma'am. Pain modulation or perception. Pain modulation, I guess you are aware about the word modulation. Modulation word सुना है? नाजिश? Yes, sir. चलो थैंक यू. सो मॉड्यूलेशन मींस टू मैनिपुलेट, टू मॉडिफाई, उसकी एक्टिविटी को कुछ अल्टर कर देना. तो पेन एक नॉर्मल पाथवे है, आपको फील होता है, इट इज अ प्रोटेक्टिव फिनोमेना ऑफ बॉडी. इसको हम मॉड्यूलेट करके ही चाहते हैं कि हमें फील नहीं हो, ताकि हम पेन फ्री रहें. तो पेन मॉड्यूलेशन होगा अगर आप अच्छे सो रहे हो तो. और ये बहुत से रिसर्च में देखा गया है कि इफ यू हैव अ गुड नाइट स्लीप, अगले दिन आपका दर्द कम हो जाता है, चाहे वो कितना भी पुराना दर्द हो, है ना. देयर इज सम बेनिफिट इन द पेन आल्सो. तो और अगर आप नहीं सोए तो सुबह बॉडी एक होता है, ऐसा लगता है तो शरीर अकड़ा हुआ सा महसूस हो रहा है, थका हुआ सा महसूस हो रहा है. नेक्स्ट प्लीज. कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को अफेक्ट करेगा ये आपकी. कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को अफेक्ट करेगा तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज के चांसेस बढ़ेंगे. इस्केमिक हार्ट डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. एंड
बिकॉज ऑफ द एपनिया। एपनिया का मतलब होता है सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, खर्राटे वाली बीमारी जो होती है ना, इसको हम बेसिकली बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, डिजीज ऑफ स्नोरिंग। सो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या हो रहा है, व्हेनेवर यू आर स्लीपिंग नॉइस आ रही है, वो नॉइस क्यों आ रही है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है रेस्पिरेशन में, और उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से नॉर्मली जितना ऑक्सीजन अंदर जाना चाहिए था उतना नहीं जाकर के कम जा रहा है, एंड दिस इज क्रिएटिंग द एपनिया। और वो एपनिया का सबसे बड़ा इफेक्ट कहाँ होगा, आपके ब्रेन पर, क्योंकि आपका ब्रेन जो है उसको आपकी बॉडी का कार्डियक आउटपुट का एक मेजर पार्ट चाहिए होता है, और कार्डियक आउटपुट में आपको क्या चाहिए, फ्रेश ब्लड चाहिए, और फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड तब मिलेगा जब आप ऑक्सीजन इनहेल करोगे। तो उस एपनिया की वजह से वो आपको फ्रेश ब्लड नहीं मिल पाता, मेटाबॉलिक एक्टिविटी अफेक्ट होती है, ब्रेन की एक्टिविटी भी अफेक्ट होगी, मेमोरी भी कम हो जाती है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन कम है तो आपके हार्ट पे लोड बढ़ जाता है, ज्यादा पंप करना पड़ेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे लोड बढ़ जाएगा, ज्यादा रेस्पिरेटरी रेट रहेगी, एंड डेफिनेटली इट विल हैव अदर इफेक्ट्स ऑन ऑल द सिस्टम्स ऑफ बॉडी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा कंपनसेटरी। नेक्स्ट प्लीज। डिप्रेशन का अगर अपन देखें तो डिप्रेशन का बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है, अगर डिप्रेशन है तो नींद नहीं आती 75% लोगों को, या नींद नहीं आ रही है तो आज ही तो कल डिप्रेशन हो जाएगा, ये पक्की बात है, सो यू शुड बी कॉशियस अबाउट इट। नेक्स्ट प्लीज, मोटर स्किल्स। ऑलरेडी आई डिस्कस्ड कि अगर आपको नींद अच्छी आ रही है तो आपकी ब्रेन बहुत रिफ्रेश होता है, लर्निंग कैपेसिटी अच्छी होती है, क्लास में अच्छा याद रहेगा। क्लास में नींद आ जाएगी तो नहीं रहेगा वो अलग बात है, रात को अच्छी आनी चाहिए ना, क्लास में आने के बाद तो सब याद रहता है। So sleep increases learning of the functional walking task, increases motor learning in the stroke and multiple sclerosis patients. Multiple sclerosis degenerative disease है, cardiovascular cerebrovascular accident is again a stroke. Chronic stroke patients के अंदर देखा गया है कि अगर आपको अच्छी नींद आ रही है तो आपकी मोटर लर्निंग अच्छी रहेगी। मतलब आज तक हम स्ट्रोक पेशेंट्स को और इन पेशेंट को एज अ फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते थे, we never had, we usually doesn't ask about the sleep pattern or sleeping issues. मोस्टली स्लीपिंग इश्यूज होते हैं पेशेंट को, और वो इसकी मोटर लर्निंग कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं। अगर वो रात को अच्छा सोएगा या हम उसकी स्लीप को बेटर बनाएं तो उसके दिन में परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली फिजिकल परफॉर्मेंस भी बेटर होगी। ठीक है, डे टाइम नैप्स में इंप्रूव मोटर लर्निंग एंड रिकवरी। डे टाइम नैप्स मतलब दिन में जबकि लेना अच्छा है, क्लास में सोना अच्छा नहीं है, ठीक है ना, तो दिन में जबकि ले सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स अ डे इज इनफ। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये तो बेसिक चीजें हैं, आई ऑलरेडी यूजुअली डिस्कस दीस थिंग्स। देयर इज वन इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव टेकन फॉर यू पीपल, फॉर यू ऑल गाइस, यंग गाइस। देयर इज वन क्वेश्चन ऑलवेज, हाउ टू चूज अ मैट्रेस। अधिकतर ये क्वेश्चन आता है कि यार ना गद्दा सही नहीं है इसलिए मुझे नींद नहीं आती। सो दैट क्वेश्चन वी विल आंसर इन द प्रेजेंटेशन, अगर आप जागते रहे तो, वरना फिर कुर्सी पे तो सब सो ही रहे। So sleep and cognition. Sleep deprivation may impact your processing information, your problem solving and goal directed tasks. तो ये सब चीजें आपको फिजियोथेरेपी में चाहिए। आप पेशेंट को बोलते हो कि आपको हाथ को उठाना है, मेरे हाथ को टच करो, बॉल को फेंको, आपको 2 कदम आगे बढ़ना है, आपको 5 उठक बैठक लगानी है, तो यू आर गिविंग द गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी टू द पेशेंट। या पेशेंट बोलते हो आपको स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स करनी है, पैर को नीचे दबाओ, घुटने को टाइट करो, जोर से दबाना है, एंकल टू मूवमेंट करो, पंजे को चलाना है। सो दिस इज व्हाट योर गोल। So you are asking the patient to do a goal directed activity. वो पेशेंट अच्छा कर पाएगा अगर उसका ब्रेन उस चीज को समझ रहा है, और वो तब समझेगा जब वो अच्छा सो रहा है। नेक्स्ट प्लीज। स्लीप एंड न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। ठीक है, तो इट हैज बीन वेल एक्लेम्ड कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में पेशेंट्स को स्लीप अफेक्ट होती है। अगर उसकी स्लीप को हम बेटर बनाए तो उसका न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट भी बेटर होता है। ये अधिकतर डिजीज में प्रूव हो चुका है। अल्जीमर डिजीज, जो बुढ़ापे में जो याददाश्त भूलने की बीमारी होती है, दैट वाज समवॉट वी कैन सी लाइक, जस्ट फॉर एग्जांपल गजनी। गजनी देखी ना सबने, गजनी मूवी? No, sir. अरे तुम लोग मूवी नहीं देखते यार, ये तो अच्छी आदत नहीं है, इसमें अच्छी चीजें भी But sir, I know about this disease, Alzheimer. एल्जीमर्स में नॉर्मली क्या होता है, तो जिन्हें देखी हो अच्छी बात है, नहीं देखी हो तो यू कैन सी, उसमें उसको भूलने की बीमारी होती है, वो भूल जाता है। तो भूलने की बीमारी के साथ में उसका सॉल्यूशन भी है उसी मूवीज में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। एल्जीमर्स में ऐसा होता है, एज के साथ होता है, नॉर्मली उम्र के साथ आपके घुटने घिस जाते हैं, डीजनरेशन ऑफ योर जॉइंट्स। सिमिलरली ब्रेन के साथ भी होता है, डीजनरेशन ब्रेन में भी होता है, उस डीजनरेशन को हम एल्जीमर बोलते हैं। और अगर आपको स्लीपिंग इश्यूज है तो आपको एल्जीमर होने के चांसेस ज्यादा है, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए। तो इसलिए जवानी में अच्छा सोना बुढ़ापे में याद रखने के लिए जरूरी है।
REM disease, REM related sleep disorders can cause you Parkinson disease. अगर आपको REM related sleep disorder है, मतलब REM फेज ज्यादा लंबी है, तो आगे चल के आपको पार्किंसन होने की संभावना है, या अदर न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज हो सकती है, जिसको अपन बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है यार, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो रात में क्या, मेरे को तो आप 4-5 दिन रेगुलर जगा लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, पर वो आगे होगी ना, हो सकती है। यू आर इन द रिस्क, जैसे कि स्मोकिंग से कैंसर हो सकता है, जस्ट लाइक दैट। Sleep is a common problem in your spinal cord injury patient, stroke patient, Parkinson, and multiple sclerosis. So in many of the chronic neurological disorders, patient is having sleeping issue, or sleeping issue creates the chronic neurological disorders. So they have a bidirectional relationship. We should consider the sleep health as a primary health. Next, please. Practical information for practice as a physical therapist. So you will practice after 2-3 years. So just have a look. Whenever we should assess the patient, we should always consider the sleep health. पेशेंट से उसके स्लीप की हिस्ट्री के बारे में पूछना कंपलसरी है, वो आपके आउटकम को अफेक्ट करेगा। मतलब अगर पेशेंट को आप अच्छा सुला देते हो या उसकी स्लीप को कुछ बेटर बनाते हो, तो कल आके वो जरूर कहेगा कि अरे सर मैं कल अच्छा सोया था और आज मेरा दर्द 50% ठीक हो गया, या मेरा दर्द कम था तो मुझे नींद अच्छी आई। सो यू शुड कंसिडर बाई डायरेक्शनली। दिस आर फ्यू स्लीपिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जिसमें आप देख सकते हैं डायग्राम में। पहला वाला जो है लेफ्ट अपर वन, पेशेंट इज हैविंग डिफिकल्टी फॉलिंग asleep, आंखें खोल के लेटा हुआ है। दूसरे वाले में वो सो नहीं पा रहा है, मतलब नींद तो आ गई, फिर जल्दी से नींद खुल जाती है, 1 घंटा आधा घंटा नींद आती है सिर्फ। तीसरा वाला पड़ोसी को जगाएगा, खर्राटे ले रहा है जोर से, लाउड स्नोरिंग। फोर्थ वन, एपिसोड ऑफ ब्रीथिंग सेसेशन ड्यूरिंग स्लीप। ऐसा कई बार आपने देखा होगा अपने ग्रैंडफादर्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में, कि वो रात को अचानक उठ के बैठ जाते हैं। क्यों? अचानक खट्टी डकार आती है, अचानक सांस रुक जाती है। सो दिस इज समवॉट अ सीरियस टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया। अगर ऐसा हो रहा है तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया का ही एक सीवियर वर्जन है, इसको बहुत सीरियसली कंसिडर किया जाना चाहिए, और ये आगे चल के कहीं ना कहीं स्ट्रोक को कोज कर सकता है। मॉर्निंग हेडेक, अगर आप सुबह उठते हो सिर दर्द के साथ, तो यू आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर स्लीप। अवेकनिंग विद ड्राई माउथ, मुंह सूखा हुआ रहता है सुबह उठते हैं तो, मतलब आप मुंह खोल के सो रहे हो, यू आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर स्लीप। डे टाइम स्लीपीनेस, क्लास में सोने की आदत अगर बहुत ज्यादा हर क्लास में आती है तो इट इज नॉट अ नॉर्मल। कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगी, यू विल फील मोर फटीग एंड यू विल बी मोर इरिटेबल, कोई कुछ बोलेगा ना चिढ़ जाएंगे जरा सी बात। सो दीज आर द few commonest complaint which indicates you are having some sort of sleep disorder. Next please. ये just for your idea. Is my voice clear? Yes, sir. It's cutting, not clear. Yes, Thank you. तो एक थोड़ा सा बेसिक प्रिवलेंस आइडिया दिया है कि ना इंसोम्निया एक सबसे कॉमन डिसऑर्डर है सारे स्लीप डिसऑर्डर्स में, लगभग 30% पॉपुलेशन इज अफेक्टेड। थोड़ा सा पुराना है, ऑलमोस्ट 2017 का है, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की ज्यादा डिटेल में नहीं जाकर के अपन सिर्फ इतनी सी चीज जानेंगे। यू कैन सी 2 हेडिंग्स, वन इज डिसोम्निया, अनदर वन इज पैरासोम्निया। सो दीस थिंग्स यू विल स्टडी इन न्यूरोलॉजी होपफुली इन 3rd ईयर। सो डिसोम्निया मतलब डिस is a difficulty, somnia means sleepiness, parasomnia means paranormal, something is abnormal। बहुत सारी मूवीज हैं जो आपकी पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे बेस्ड है या साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज पे बेस्ड है। तो जब आप सो नहीं पा रहे हो तो डिसोम्निया होगा, जब आप सोने में कुछ गड़बड़ करते हो तो पैरासोम्निया होगा। जस्ट फॉर अ सिंपल एग्जांपल यू कैन सी दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ, नेक्स्ट प्लीज, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ डिसोम्निया। जैसा कि आप देख सकते हैं वो ट्रेडमिल पे जब वो गिर रहा था तो क्यों हो रहा था? डिसोम्निया की वजह से। नेक्स्ट वन प्लीज। दिस यू कैन सी द पर्सन, कुछ लिखा हुआ आ रहा है, मींस द पर्सन इज स्पीकिंग इन द स्लीप, नींद में बड़बड़ाने की आदत, मतलब आप सो तो रहे हो पर आप नींद में बोल रहे हो। स्लीप टॉकिंग डिसऑर्डर, ये पैरासोम्निया है, मतलब आपको नींद भी आ रही है, सो भी खूब रहे हो, लेकिन नींद में बड़बड़ाते हो। इट इज पैरासोम्निया। नेक्स्ट वन इज ये GIF मूव नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मतलब नींद में चलने की बीमारी, मतलब यू आर स्लीपिंग बट देयर इज समथिंग अबनॉर्मल इन स्लीप, पैरासोम्निया। नेक्स्ट वन प्लीज। ये इट्स अ गुड एग्जांपल ऑफ स्लीपिंग ड्यूरिंग क्लास। मैम कैन यू प्लीज मेक इट ऑन द फुल स्क्रीन मोड? आई थिंक द GIF will work on that.
So this is again type of dysomnia, है ना. ये डे टाइम स्लीपीनेस है जो कि डिसोम्निया का पार्ट है, मतलब आप रात को ढंग से नहीं सो पाते इसलिए आपको दिन में नींद आ गई. ठीक है. ट्यूसडे इसलिए स्पेसिफाई किया है कि संडे के बाद मंडे को तो चलो कोई बात नहीं है, होता है कि मैं कल ज्यादा सो लिया, but ट्यूसडे को भी आ रही है. दिस इज abnormal. Next one. Again, this will work only in the presentation mode. So just before it. Yeah. So this is the GIF image. It is not showing here again. So इसमें क्या हो रहा है कि पेशेंट जो मेल कैंडिडेट दिख रहा है आपको राइट साइड में, वो अचानक से नींद में से जग जाता है. जैसे कई बार होता है ना, किसी को होता है कि रात को नींद में हाथ पैर चलाने की आदत है, पड़ोसी को लात मार के, मतलब भाई बहन साथ में सोते हैं ना, तो उनको लात मार के नीचे गिरा देते हैं. सो दिस इज पैरासोम्निया, मतलब स्लीपिंग में कुछ अबनॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हो. नेक्स्ट इज कांट स्लीप, मतलब आप सो नहीं पा रहे हो. दिस इज इंसोम्निया. दिस इज एक्चुअली इंसोम्निया जो कि डिसोम्निया का पार्ट है. नेक्स्ट वन. ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनी ऑलरेडी डिस्कस्ड. खर्राटे आ रहे हैं आपको, तो खर्राटे आने से आपको परेशानी कम होगी. अगेन ये जीआईएफ है, इसलिए पड़ोसी नजर नहीं आ रहा है. तो खर्राटे आने से आपको तो दिक्कत बाद में होगी, पड़ोसी को उसी दिन होती है, बेचारा उस दिन रात भर नहीं सो पाएगा. नेक्स्ट प्लीज. नाउ लेट अस सी द इंसोम्निया इन वेरी शॉर्ट. मतलब आप रात को सो नहीं पा रहे हो, इनएबिलिटी टू स्लीप, मतलब नींद आने में दिक्कत आ रही है या नींद को मेंटेन करने में. या तो आपको रात को 3 घंटे तक नींद नहीं आती लेटने के बाद, या फिर आती तो है 1 घंटे में खुल जाती है फिर दोबारा नहीं आती. That would be known as insomnia. And 18 hours of absent sleep reduces your reaction time approximately 50%. Next slide. Normal sleep क्यों जरूरी है आपको पता ही है, इसलिए insomnia जो होता है ना, so that has been mentioned here. The important thing for us as a physio is if someone is having 18 hours of absent sleep, अगर आप 18 घंटे तक नहीं सोते हो, you can see in the last line, it will reduce your reaction time approximately of 50%. कोई मुझे बता सकता है रिएक्शन टाइम कम होने से आपका क्या नुकसान है, मतलब एज अ फिजियोथेरेपिस्ट क्या क्यों नेसेसरी है? डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ रिएक्शन टाइम? कोई सिंपल एग्जांपल? एनीवन प्लीज? सर क्वेश्चन समझ नहीं आया. रिएक्शन टाइम से आपको समझते हो रिएक्शन टाइम में एज अ पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी, एज अ पार्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है? चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. सब रोड पे चलते हैं, कभी कभी सबके पैर के नीचे कंकड़ आया होगा, है ना, या पत्थर आया होगा, या कुछ ऐसा हर्डल आया होगा कि हम अचानक से लड़खड़ा गए. ऐसा हुआ है? यस सर. पर उसमें अधिकतर नहीं, अनटिल अनलेस ऑब्स्ट्रक्शन बहुत बड़ा नहीं था या कुछ ज्यादा बड़ा हर्डल नहीं था, हम गिरते नहीं, अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं. पीछे से आके किसी ने अचानक धक्का दिया तो आप खुद को रोक लेते हो, एकदम गिर नहीं जाते. सो दिस इज योर रिएक्शन टाइम जितना कम होगा, उतना आपके लिए अच्छा है. आप आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाओगे, फॉल प्रिवेंशन कर पाओगे. रिएक्शन टाइम ज्यादा होगा, आप रेस्पॉन्स को डिले करोगे. नॉर्मली जब अपन कभी पेशेंट देखते हैं तो देखते हैं पेशेंट बहुत धीरे चल रहा होता है, या थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ कि वो गिर जाता है, तो वो रिएक्शन टाइम. अगर आप 18 घंटे तक लगातार नहीं सो रहे तो आपके रिएक्शन टाइम को, नो एक्चुअली द वर्ड इज रॉन्ग, रिड्यूसेस नहीं, रिएक्शन टाइम बढ़ जाता है. ठीक है. तो रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी. तो आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक से आगे कोई आ गया तो आपको ब्रेक लगाना है ना, एक्सेप्ट वुमेन्स, सॉरी है ना, जस्ट फॉर अ जोक. सो जैसे अचानक कोई आगे आता है तो यू नीड टू स्टॉप द व्हीकल. तो आपका रिएक्शन टाइम है, अचानक आप डिसीजन ले रहे हो और आपने रोक लिया है, वरना सामने वाला गाड़ी के नीचे भी आ सकता है. तो अगर आपका रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा होगा तो आप सोच के डिसीजन लोगे ना, उतने में वो गाड़ी के नीचे ही होगा, और ये स्लीप डेप्रिवेशन से हो सकता है. नेक्स्ट वन प्लीज. सो दीज आर फ्यू कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंसोम्निया. साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्यों, पुअर इम्यून सिस्टम होगा, बीपी बढ़ेगा, हार्ट डिजीज एंड ऑल वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट. नेक्स्ट वन प्लीज. इम्पैक्ट ऑफ इंसोम्निया ऑलरेडी डिस्कस्ड. बायोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात करें तो इम्यून सिस्टम अफेक्ट होगा. फंक्शनल इंपेयरमेंट में देखें अपन तो एक्सीडेंट की रिस्क बढ़ रही है ना, यू विल हैव लेस कंसंट्रेशन, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, दिन में सोओगे तो काम कब करोगे, एंड यू विल हैव अदर हेल्थ इश्यूज. नेक्स्ट वन प्लीज. दिस ग्राफ इज शोइंग यू द रिस्क फैक्टर्स. और जो जैसे मैं बोल रहा था कि साइकेट्रिक डिजीज हो सकती है, तो इट हैज बीन प्रूवन इन दिस रिसर्च. 1989 का है, थोड़ा ज्यादा पुराना हो गया.
but yes, sleep disorders causes you psychiatric problems. So this yellow one is any psychiatric disorder. कोई भी psychiatric disorder होने की prevalence chances बढ़ जाते हैं आपको 33%. अगर 2 जन हैं तो एक कम करते हैं तो 33% ज्यादा chances में होने की depression या anxiety होने की. Risk factors. So there are few risk factors like age. जैसे जैसे age बढ़ती है आपको sleep disorder होने के chances बढ़ जाते हैं. Female are more prone क्योंकि there are few other physiological changes in the woman's body that to affects. Comorbid status. अगर कोई साथ में बीमारी है तो उसकी वजह से आपको स्लीप प्रॉब्लम हो सकती है. शिफ्ट वर्क है, नाइट डे ड्यूटीज चलती हैं तो वो आपकी नींद को अफेक्ट करती है और वो एक बीमारी का नाम भी है, दैट इज नोन एज शिफ्ट लेग डिसऑर्डर, है ना, जेट लेग टाइप डिसऑर्डर होता है. बेरोजगार आदमी को वैसे भी नींद नहीं आती, काम ही क्या है, तो वो भी एक नींद की प्रॉब्लम क्रिएट करती है. लो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, उनको भी नींद का इशू रहेगा क्योंकि साइकेट्री मतलब एंजाइटी रहेगी. साइकेट्रिक कंडीशन में वाइब्रेशनल है. मेडिसिन अगर आप ले रहे हो, ऐसे सारा ही आने से मैंने तो बोला था कि नींद आती है, यहाँ तो लिखा हुआ है कि उसकी वजह से नींद नहीं आएगी. सो एनी आइडिया? कॉफी, ऑक्सीकोडोन, बीटा ब्लॉकर्स. अच्छा, ये ड्रग्स के नाम सुना है सबने? ऑक्सीकोडोन एंड बीटा ब्लॉकर्स. कैफीन, चलो मैं बताता हूँ. यस सर, कैफीन सुना है सर. कॉफी है, खूब पीते हैं. तो कैफीन एक्चुअली अफेक्ट्स स्लीप, तो सेडेटिव एजेंट है अगेन. ऐसा सारा ही एंटी साइकोटिक एंटी डिप्रेशन मेडिसिन जो नींद क्रिएट करती है, पर इसकी सबसे अच्छी खासियत क्या है कि कुछ टाइम बाद में एडिक्शन हो जाता है. मतलब यू विल गेट अडिक्टेड फॉर द मेडिसिन. उस डोज के लिए एडिक्ट हो जाओगे, बाद में नींद आना बंद हो जाएगी, जिसको हम बाद में बोलते हैं रिबाउंड इंसोम्निया. नींद आ रही थी, अब साल भर हो गया, अब आना बंद हो गई, क्योंकि दवा से भी नींद आना बंद हो गया, दवा का साइड इफेक्ट मान लो. ऑक्सीकोडोन बेसिकली कफ सिरप्स में होता है, जो उसमें भी थोड़ा उसका साइड इफेक्ट है नींद, सेडेशन उसके साइड इफेक्ट की वजह से होता है. और कई बार हिस्टामिनिक जो है, एंटी हिस्टामिनिक्स होती है ना, जैसे सिट्रिजिन, तो दैट क्रिएट सिट्रिजिन एविल जो टैबलेट होती है, उसके साइड इफेक्ट है स्लीप, सेडेशन. बीटा ब्लॉकर एंटी की वजह से थोड़ा नींद आती है, तो काम डाउन कर देता है ताकि आप कम. Sir, only covered that part which is included in the second year and for first year, because excessively अगर आप कराते हैं तो जो पिछला याद किया है वो भी भूल जाएंगे, पिछला जो समझ में आया है. ठीक है, ठीक है. तो बस फिर अब लास्ट में सिर्फ एक लिस्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑप्शंस हैं, आई थिंक 5-6 स्लाइड्स के बाद में. फिजियोथेरेप्यूटिक अप्रोचेस. Just physiotherapeutic approaches only. I think management of sleep disorders के बाद में. Let me just summarize it in short. कि स्लीप डिसऑर्डर्स के मैनेजमेंट की बात करें तो एज अ फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर अवेलेबल फॉर द ट्रीटमेंट. ब्रेन स्टिमुलेशन के बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं. योर आईएफटी, टेंस, दैट कैन आल्सो इंप्रूव द स्लीप ऑफ द इंडिविजुअल. रिलैक्सेशन मेथड्स, जैकबसन रिलैक्सेशन मेथड जो हमने एक्सरसाइज थेरेपी में पढ़ा है, दैट टू कैन इंप्रूव योर स्लीप, क्योंकि आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा. पोजिशनिंग इज अ क्रूशियल रोल. अगर आप प्रॉपर कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे तो नींद आएगी. प्रोग्रेसिव रजिस्टर्ड एक्सरसाइजेस. फिजिकल एक्टिविटी भी अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन कि रात के टाइम सिर्फ आप लो इंटेंसिटी कर सकते हैं, हाई इंटेंसिटी लाइक रनिंग एक्टिविटी नहीं करनी होती है. योगा, मेडिटेशन, ऑस्टियोपैथी टेक्निक्स, एक्यूपंक्चर, दैट यू कैन हेल्प. अदर मेथड्स जो कि साइकोथेरेप्यूटिक अप्रोचेस हैं, दे आर स्लीप हाइजीन, सबसे बेस्ट और वेल एक्लेम्ड है, जो कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए. अदर मेथड्स ऑफ सीबीटी है, साइकोथेरेपी अप्रोचेस हैं, स्लीप रेस्ट्रिक्शन है, stimulus control है, PI therapy and all the things. So being a graduate, one important thing for us is sleep hygiene only. And before that, yes, how to choose a mattress. Because many of the times, because of the inappropriate mattress, we do have a sleeping issue. So according to diagram, as you can see here, अपने को कोई भी mattress कैसे select करना है अगर अपने को purchase करने जाना है तो you should lie on your side in a fetal position. knees bend करके fetal position में lie करें. And whenever you are lying, if you are maintaining 6 centimeter of difference between your head and
योर बेड, हेड और बेड के बीच में 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, और उससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए। उतने डिफरेंस पे आपका स्पाइन अगर स्ट्रेट मेंटेन हो रहा है, जो लाइन आप देख पा रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये अगर स्ट्रेट लाइन है, कहीं भी कर्व नहीं है, इसका मतलब वो मैट्रेस आपका बहुत अच्छा मैट्रेस है। दैट टू बी वी कैन से अकॉर्डिंग टू दिस लैंग्वेज इज ट्रू फॉर्म, जो एक अप्रोप्रिएट मैट्रेस है, जो आप जैसा कि वो आपके लिए होना चाहिए। अगर वो बहुत सॉफ्ट होगा तो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाएगा, दैट टू अगेन कोज यू इन अप्रोप्रिएट माल पोजिशनिंग ऑन द बेड, और स्लीप अफेक्ट करेगा, अगले दिन आप थके रहोगे। सो मैट्रेस शुड बी ट्रू फॉर्म, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, बहुत दबे नहीं, बॉडी पे एक फर्म सपोर्ट दे, ठीक है। नॉर्मली साइज की अगर अपन बात करें तो फॉर एन इंडिविजुअल 3x6 का जो सिंगल बेड आता है, या डबल बेड कई बार 3x6 4x6 वाले को बोलते हैं, बट साइज सुपर किंग साइज जो होता है दैट इज 6x6, दैट इज सफिशिएंट मिनिमम साइज एक्चुअली फॉर 2 पर्सन्स इन अ बेड। अगर 2 जने एक पलंग पे सो रहे हैं शेयरिंग में, तो 6x6 साइज का बेड होना चाहिए, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट। एंड हमेशा बेड अच्छा होना जरूरी नहीं है, कई बार उसके सस्ते अल्टरनेट भी, क्योंकि मैट्रेस में भी ऑफ 5000 10,000। सो बॉडी कंफर्टर एक बड़ा सा पिलो होता है जो कि बेड के साइज का होता है, उसको लेकर के आप उसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं मैट्रेस, इनअप्रोप्रिएट मैट्रेस को। पिलो एक ऐसी चीज है जो वास्तव में जरूरत ही नहीं होती नींद के टाइम पे, पर वो हमारी आदत है जिसकी वजह से हमें यूज करना होता है। एंड सो देयर आर लॉट ऑफ पिलोज अवेलेबल इन द मार्केट। फोम पिलो होता है, मेमोरी फोम पिलो, फेदर का होता है। तो इसमें जो अप्रोप्रिएट जो होता है ना, सिंगल शेलो पिलो, दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ बेटर स्लीप, बेटर गुड नाइट स्लीप। एंड ये फॉर रेफरेंस आई टेकन इट फ्रॉम द बुक स्लीप, बुक है निक लिटिल हेल्थ की, दे आर वेरी वेल एक्सप्लेन्ड अबाउट इट। And just after this, let us come to the sleep hygiene only. Yeah, this one. So this is something which is actually important as a healthcare worker, as a graduates, we should know about the sleep hygiene. ये वो hygienic habits हैं, वो अच्छी good habits हैं जो आपकी sleep को better बनाएंगी, या आपको अच्छी sleep maintain करने में help करेंगी। इसमें ऊपर जो फैक्टर्स दिए हुए हैं वो आपको अच्छे सोने में मदद करेंगे, नीचे वाले फैक्टर्स की वजह से आप अच्छा नहीं सो पाओगे, आप जागोगे। तो ऊपर फैक्टर्स हैं, गो टू बेड एंड गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे। रात को सोने और सुबह उठने का एक टाइम फिक्स करें, ऑन एन एवरेज हफ्ते में 5 दिन, है ना। सेम टाइम पे सोना है, सेम टाइम पे उठना है, मतलब पलंग पर लेटने का समय फिक्स करें। दूसरा, मैट्रेस कंफर्टेबल होना चाहिए, इसलिए मैंने मैट्रेस का डिस्कशन पहले बता दिया। अवॉइड कैफीन एंड अल्कोहल एट नाइट, चाय कॉफी तला भुना खाना, हैवी फूड, ये सब हमें रात के टाइम पे अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली आफ्टर 8 बजे के बाद चाय कॉफी की आदत है तो अवॉइड करें, स्मोकिंग अवॉइड करें, तो आपकी स्लीप को अफेक्ट करेगी, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीना है, लेकिन बहुत ज्यादा पानी पिएंगे तो भी नींद खराब होगी, क्योंकि बागा यूरिनेशन के लिए उठना पड़ेगा। Relaxation exercises, sometimes you are anxiety, you are in anxiety, you are not relaxed, तो जैकबसन रिलैक्सेशन मेथड, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ये चीजें प्रैक्टिस करके आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, जो आपको अच्छा सोने में मदद करेंगे। स्पेंड टाइम आउटसाइड, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आपको नींद नहीं आ रही है आधे पौने घंटे तक, तो फिर आपको पलंग पे लेटे नहीं रहना है, फिर आप उठ जाइए, कुर्सी पे बैठ जाए, जमीन पे बैठ जाए, उसके बाद बैठ करके कुछ पढ़ लें, गाने सुन लें, वीडियो नहीं देखनी चाहिए, नॉर्मली ऑडियो सॉन्ग्स कैन बी यूज्ड। रीड अ बुक इन अ बेड, पलंग पे सिर्फ आप किताब पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उससे लाइट नहीं आ रही है ना, हल्की रोशनी में सिर्फ किताब पढ़ सकते हैं, लैंप जला करके। हैव एन अर्ली लाइट डिनर, रात को डिनर लाइट लेना है, ये सब आपको सोने में मदद करेंगे। देयर आर फ्यू फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स स्लीप, जिसमें है कॉफी एंड चॉकलेट आफ्टर द डिनर, रात को ना किसी किसी को शौक होता है, तो दैट कैन अफेक्ट स्लीप, वो आपको अवॉइड करना चाहिए। पुअर क्वालिटी बेडिंग, वो आपको सोने नहीं देगा। बेडरूम का एनवायरनमेंट बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म, मतलब बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए, बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए, बहुत अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट होना चाहिए। गो टू बेड व्हेन यू आर नॉट टायर्ड, ठीक है, अगर आप बहुत थके हुए हो तो फिर आपको अपनी थकान मिटाने के लिए यू कैन टेक अ शावर, यू कैन टेक यूज सम रिलैक्सेशन थिंग्स, यू कैन टेक सम मसाज एंड देन यू गो, ठीक है। अगर आप थके हुए हो और फिर लेटोगे तो फिर थकान में नींद कहां से आएगी। स्टे इंडोर्स ऑल डे एंड डू नो एक्सरसाइज, अगर आप पूरे दिन लेटे रहते हो, कोई काम नहीं करते हो, बैठे हुए हो, तो obviously बात है रात को नींद नहीं आएगी। लाई इन बेड फॉर आवर्स गेटिंग स्ट्रेस्ड, काफी देर तक बैठ करके पलंग पे आप प्लानिंग करते हैं कई बार कि मुझे कल क्या करना चाहिए, है ना, मेरे एग्जाम कैसा होगा, रिजल्ट कैसा आएगा, तो ये सब अगर आप पलंग पे कर रहे हैं, मोबाइल चैटिंग सबसे इंपॉर्टेंट, वो आपकी नींद को खराब करता है, तो ये सब काम आपको बेड पे नहीं करना है, ठीक है। एंड स्ट्रेस एंड एंजाइटी इज टू बी अवॉइडेड, यूज अ टैबलेट और फोन इन द बेड, ये भी अवॉइड करना चाहिए, ऑलरेडी आई डिस्कस्ड इट। सो दिस इज समथिंग व्हिच शुड बी कंसीडर्ड। एंड माइंडफुलनेस मतलब मेडिटेशन, आपको रिलैक्स करना है, अल्टीमेटली यू शुड बी रिलैक्स, जितना आप रिलैक्स होगे ब्रेन उतना रिलैक्स होगा, ब्रेन रिलैक्स होगा, यू विल गेट अ बेटर स्लीप। I hope this is at least enough for you
And sleep hygiene is something which is actually we must know. So hopefully शायद कुछ समझ में आया होगा. Is there any query?